हाँ जी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये अपना जिहड़ा अगला लेक्चर है जिस दे विच आपां चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस जिहड़ा है बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ फस्ट ईयर क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ x1 x2 ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਗੋਸ ਜੋਰਡਨ ਮੈਥਡ, ਕਰਾਊਟਸਮੈਨ ਚੋਮਸਕੀ ਮੈਥਡ, ਜੈਕੋਬੀ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਗੋਸ ਸੀਡਲ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ x1 x2 x3 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗੋਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਏਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰਹੇਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ x ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ट्रायंगुलेशन का फस्ट स्टैप है। फस्ट स्टेज के विच तुसी की करना है मतलब ये एक्चुअली की करना होंगे ट्रायंगल शेप बनानी होंगी है तो आप की करते हैं हर एक अगली इक्वेशन च एक एलीमेंट डिक्रीज़ करते चले जाते हैं। जिमें कि पहली दे विच 3 वेरीएबल्स है, दूसरी च अपने को 2 वेरीएबल होने चाहिए, तीसरी च इको ही रहेगा। ओके, तो ये फिर आप की करांगे हुण पहले च 3 वेरीएबल है तो बाकी दियां दोनों च आपां दोनों एक्सिस है जिहड़ी, ठीक है, एक्स नूं खत्म कर देवांगे। एलिमिनेट एक्स फ्रॉम सैकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। खत्म किस तरह करांगे देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਈ 2/3 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2/3 ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ x ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 2x ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 2x ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ यानी कि इतने 2 होना चाहिए है 3 नहीं होना चाहिए। तो आप फस्ट इक्वेशन है जी इनू की करांगे इनू 2/3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। इनू जो 2/3 नाल मल्टीप्लाई करोगे 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा की आ जाएगा तुहाडे कोल 2x आ जाएगा बन गया ना 2x। तो जो इनू तुसी 2/3 नाल करोगे तो 3 कैंसल तो होएगा नहीं 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 8/3y बन जाएगा तुहाडे कोले। उस तो बाद इनू तुसी 2/3 नाल करना है 5 दूनी 10 क्लीयर यानी कि 10/3z। उस तो बाद तुसी की करना है इनू सबट्रैक्ट कर देना है इहदे विचों। ठीक है, चाहे इनू इहदे विचों कर दो चाहे तुसी इनू इहदे विचों कर दो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। ठीक है, इनू की करना है सबट्रैक्ट कर देना है तो मीनस आ वाली सैकेंड इक्वेशन इस चो माइनस करोगे तो तुसी लिखोगे -2x। ठीक है, प्लस 3y
माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना जो आप माइनस करांगे इनू, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू एक चीज़ राइट हैंड साइड ते भी आप 2/3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। जो राइट हैंड साइड ते करोगे तो अपने को लेके बन जाएगा 80/3 माइनस 13। ओके, इस तरह जिहड़ा हैगा इक्वेशन अपने को बन जाएगी जिस 2x नाल 2x आप x नू खत्म करना सी, 2x नाल 2x खत्म हो जाएगा, सिर्फ y ते z वाली टर्म्स रह जाएंगी। ओके, हुण तुसीं इन्हां दोनों नू प्लस कर देना है, y वाली नू y वाली च, z वाली नू z वाली च, इन्हां दोनों नू कॉन्स्टेंट्स नू। ओके, जो y वाली नू करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा तुहाडे कोले, 8 प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 ते 8 17, यानी कि 17/3 जिहड़ा हैगा ओह y दी वैल्यू आ जाएगी। देखो माइनस दे 17/3 y अपने कोल जिहड़ा हैगा वो आ गया, प्लस 2/3 z। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी माइनस बेटा ਤਾਂ आ गया क्योंकि मैंने ये वाली इक्वेशन ਨੂੰ सबट्रैक्ट करता, जे ए ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दे ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ माइनस लग ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ माइनस ਦਾ साइन क्योंकि ਇੱਥੇ भी माइनस ਇੱਥੇ भी माइनस आ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ माइनस माइनस ਦਾ साइन आ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ठीक है, ਉਹ कोई फर्क नहीं पैंदा, आंसर ਤੁਹਾਡਾ सेम आएगा। जो तुसी हुण देखो आह सॉल्व करोगे 10/3 z माइनस 4z, ਤਾਂ ਇੱਥੇ भी तुसी 3 एलसीएम लओगे, 3 एलसीएम लता तो 10 माइनस 12। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी माइनस 2/3 z। क्लीयर, क्योंकि जो साइन का फर्क पेगा ना बेटा सारा ही पेगा। देखो इतने माइनस आ रहा मेरा, इन्होंने प्लस पाया हुआ, उहदे नाल फर्क नहीं पैंदा क्योंकि जो फिर इधर पॉजिटिव बन जाएगा। देखो जो आप इनू सॉल्व किया है 3 नू मल्टीप्लाई, इत्थे भी 3 एलसीएम आ जाएगा अपने को 80 माइनस 9 39/3। तो ये सबट्रैक्ट कर दो, 10 चो 9 कड्डे 1 तो 7 चो 3 कड्डे 41/3 पॉजिटिव आ गया ना, तो वो माइनस का फर्क बेटा साड़ी रहेगा, वो कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। तुसी चाहे माइनस का साइन पा लो चाहे प्लस का साइन पा लो। सिमिलरली बेटा हुण आपां नूं देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड इक्वेशन, ये तो सैकेंड इक्वेशन सॉल्व होगी। जो तुसी थर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्स खत्म करने वास्ते आपां नूं 3 नहीं चाहिए, तो आपां फर्स्ट इक्वेशन नूं 1/3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। जो 1/3 नाल मल्टीप्लाई किया 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, तो इत्थे 4/3 लग जाएगा, इत्थे 5/3 लग जाए, इत्थे 40/3 लग जाएगा। तो उहनूं आपां की कर देना इहदे विचों सबट्रैक्ट कर देना थर्ड इक्वेशन विचों। उवें ही आपां 3 एलसीएम लैके जो सॉल्व करांगे तो अपने को इक्वेशन की बन जाएगी माइनस 1/3y माइनस 2/3z इज इक्वल टू माइनस 13/3। क्लीयर, इस तरीके नाल आपां ने की कीता नीचे वाले दोनों इक्वेशनस दे विचों x नूं खत्म कर दिता। उस तो बाद अगला स्टैप की होएगा, आपां ने थर्ड इक्वेशन दे विचों y नूं खत्म करना है। हुण थर्ड इक्वेशन नूं जदों y नूं खत्म करना है तो आपां की करांगे सैकेंड इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई करांगे। हुण मल्टीप्लाई सैकेंड इक्वेशन बाय 1। देखो 3 तो आपां नूं चाहीदा ही है बटे च, 17 नहीं चाहीदा हैगा, तो आपां की करांगे सैकेंड इक्वेशन नूं 1/17 नाल मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन चों सबट्रैक्ट कर देवांगे। ओके, तो जो आपां सबट्रैक्ट कर देवांगे इनू 1/17 नाल, देखो इनू 1/17 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 17 नाल 17 कैंसल, तो माइनस 1/3 रह जाएगा। तो जो इस माइनस करांगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, कैंसल हो जाएगा y, तो इनू तुसी 1/17 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोले 12/17 जिहड़ा हैगा वो बन जाएगा। क्लीयर, तो इज इक्वल टू माइनस दे इनू भी आपां ने जिहड़ा हैगा 1/17 सबट्रैक्ट करके जिहड़ा हैगा 12/17z बन जाएगा, तो माइनस दे 180/51। हुण अपने कोले इस तरह इक्वेशनस आ गई। ठीक है, ये एक्स वाई जैड तीनों अपने को वेरीएबल्स है, इस वाई जैड है तो जैड। सेम प्रोसीजर बेटा आपने सारे क्वेश्चंस दे विच फॉलो करना है। क्लीयर, मतलब बस करना कुछ नहीं हैगा। फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगी, दूसरी ते तीसरी चो पहला एक्स खत्म कर दोगे, फिर तीसरी चो वाई नू भी खत्म कर देना। सैकेंड स्टैप अपने को आ जाता है बैक सबस्टिट्यूशन। बैक सबस्टिट्यूशन की होंदा है अपने को
बैक सबस्टिट्यूशन आपां की करांगे, जिवें थर्ड इक्वेशन है जिहड़ी इहदे विचों पहलां Z दी वैल्यू सॉल्व करांगे। Z दी वैल्यू किस तरह सॉल्व करोगे, आ -12/17 है ना, इनू इधरली साइड ते लै जाओ, ये उल्टा हो जाएगा 17/12 बन जाएगा, तो माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, तो बाकी टर्म्स नूं आपां की करांगे कैंसल करवा देवांगे। ओके, जिवें कि 17 है 51 ते कैंसल हो जाएगा, 3 दे टेबल ते चला जाएगा ये, ठीक है, इत्थे कैंसल करके 3 आ जाएगा तुहाडे कोले। उस बाद 3 नूं इहदे नाल कीता 6 ती 18 हुंदा 60 आ जाएगा तुहाडे कोले। ओके, 12 दे टेबल 5 हुंदा है। इस तरह सारा कैंसल करके Z दी वैल्यू तुहाडे कोले की आ जाएगी 5 आ जाएगी। Z दी यह वैल्यू तुसीं की करोगे सैकेंड क्वेश्चन च पुट कर दोगे। इस Z दी वैल्यू 5 पुट की तो 10/3 हो गया, इनू इधरली साइड ले आएगी, आप सॉल्व करांगे इनू, ठीक है। 5 पुट कर दिता, इनू जो सॉल्व किया 10/3 आ गया, इनू इधर लिया -10/3 हो गया। ओके, 3 एलसीएम लोगे तो तुहाडे कोले वैल्यू कितनी बन जाएगी -51/3, तो जिहड़ा हा मल्टीपल दे विच है यह इधर आके की बन जाएगा 3/17 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, तो 17 नूं आपां कैंसल करावांगे तो वैल्यू अपने कोले कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो जाने कि y की वैल्यू 3 आ गई, Z की वैल्यू 5 आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ हुण आपां फर्स्ट इक्वेशन पुट करके x की वैल्यूज कढांगे। क्लीयर, y की वैल्यू 3, Z की वैल्यू 5 पुट कर दी, मल्टीप्लाई करता 12, 25 प्लस कर देंगे, 25 ते 12 प्लस करके अपने कोले बन गए 37, माइनस दे 37 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 नाल डिवाइड किया तो वैल्यू 1 आ गई। इस तरह तुसी की है एक्स वाई जेड दी जिहड़ियां वैल्यूज है उन्होंने तुसी बेटा सॉल्व करना है। क्लीयर बेटा, सेम आपां ने प्रोसैस सारे सम्स च फॉलो करना है। गोस एलिमीनेशन मैथड है, इस च भी देखो आपां नूं 3 इक्वेशनस गिवन है, तो तीनों इक्वेशनस दे विच हुण x1 x2 3 गिवन है, तो आपां नीचे वाले दोनों च पहला x1 खत्म करांगे, फिर देखो फर्स्ट अपना स्टैप शुरू हो जाएगा ट्रायंगुलाइजेशन टू एलिमिनेट x1। फर्स्ट स्टैप दे विच मल्टीप्लाई करांगे आपां फर्स्ट इक्वेशन नूं। तुसीं देखना बहुत ईजी है, जो इत्थे है उहदे नाल डिवाइड करना है, तो जो इत्थे है उहदे नाल मल्टीप्लाई करना है। ओके, यानी कि 3/2 नाल आपां की करांगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, 3 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन नूं 3/2 नाल पहला मल्टीप्लाई करके सैकेंड इक्वेशन चो सबट्रैक्ट करना है, फिर 1/2 नाल मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन चो सबट्रैक्ट करना है। तो सॉल्व करके आ दोनों इक्वेशनस आ जाएंगे अपने को। हुण थर्ड इक्वेशन च आपां x2 नूं खत्म करना है, उहदे वास्ते आपां सैकेंड इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई करांगे 1/7 नाल, ठीक है। सैकेंड इक्वेशन नूं सॉरी 7 नाल मल्टीप्लाई आपां नूं 7/2 चाहिदा है, ठीक है। तो 7 नाल इहनूं मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन बाय 7, तो ये सबट्रैक्ट कर देवांगे। सबट्रैक्ट करोगे तो तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी -2x3, ओके, इज इक्वल टू -10। तो फिर अपना बैक सबस्टिट्यूशन स्टैप, बैक सबस्टिट्यूशन मीन पहला x3 की वैल्यू सॉल्व कर ली, -2 नाल डिवाइड किया, माइनस नाल माइनस कैंसल, तो 2 नाल किया तो 5 आ गया। x3 की वैल्यू 5 आ गई, इनू सैकेंड इक्वेशन पुट कर दो, तो x2 की वैल्यू तुहाडे कोल आ जाएगी -9। फिर x2 तो x3 दी वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन दे पुट कर देनी तुसी, तो वैल्यू x1 दी आ जाएगी। इस तरह तुसी सॉल्व करना। ओके, थर्ड एग्जाम्पल भी सेम है बेटा, ये भी तुसी सेम प्रोसैस करना है। फोर्थ एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी आ उहदे विच आपां नूं 4 इक्वेशनस गिवन हैगी आ। जो 4 इक्वेशनस गिवन है प्रोसैस सेम चलेगा। फिर तुसी की करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेम रखनी है, फिर नीचे वाले तीनों इक्वेशनस दे विचों x1 नूं खत्म करना है। ओके, तो ये वास्ते तुसी की करो, देखो इन्हां दे नाल के 1 1 ही है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन नूं 1/5 नाल मल्टीप्लाई करके तीनों दे विचों सबट्रैक्ट कर दो तुसी। ओके, 1/5 दे नाल मल्टीप्लाई करके जो सबट्रैक्ट करोगे तो x1 जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टैप है। उस तो बाद सैकेंड इक्वेशन रेडी होगी तुहाडी, थर्ड इक्वेशन ते फोर्थ इक्वेशन च तुसी x2 नूं खत्म करोगे। ओके, x2 नूं खत्म करने वास्ते आपां की करांगे, मल्टीप्लाई करांगे सैकेंड इक्वेशन नूं 2/17 दे नाल। ओके, 2/17 दे नाल मल्टीप्लाई करके थर्ड ते फोर्थ इक्वेशन चो सबट्रैक्ट कर देवांगे, तो अपने कोले आ वाली इक्वेशनस आ जाएंगियां, आ वाली दोनों उमें ही रहनगियां।
ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x3 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12/17 ਦੇ ਨਾਲ, 12/97 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ थर्ड इक्वेशन चो सबट्रैक्ट कर देवांगे तो अपने को जो है x3 इस चो खत्म हो जाएगा। क्लीयर सेम है, मतलब जिन्नियां ज़्यादा इक्वेशनस होंगे उन्ना ही एक एक स्टैप जो अगे बढ़ता चला जाएगा, प्रोसैस सेम रहेगा अपना। हम बस ये x4 की वैल्यू कैलकुलेट करके थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे, फिर x3 की वैल्यू भी आ जाएगी, उन्होंने दोनों वैल्यूज़ में सैकेंड इक्वेशन पुट करके x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर सारिया तीनों वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन पुट करके अपने को x1 की जी वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ओके, इस तरह x1 x3 x2 तो x1 की आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर बैक सबस्टिट्यूशन देना। फिफ्थ जी एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल जो है यूजिंग द कंसैप्ट ऑफ पावर्टिंग सॉल्व द सिस्टम। ये बेटा की करना होंगे है, ये कुछ भी नहीं हैगा, चीज़ वही है गॉस एलिमिनेशन मैथड जिमें आप यूज़ करते हैं। जस्ट तुसी ये देखोगे कि जी हैगी है जी एक्स वाई के कोफिशिएंट्स के बड़े आ वो वाली इक्वेशन तुसी ऊपर रखनी है तो जेडे छोटे आ उन्होंने तुसी नीचे कर लेना है। पावर्टिंग दे विच जस्ट तुसी यही चीज़ करना है, होर कुछ भी नहीं, बाकी सारा प्रोसैस सेम है। मतलब तुसी जस्ट ये देखना है कि जिहदे कोफिशिएंट की है एक्स वाई जेड दे बड़े है, जी इक्वेशन दे विच वो वाली इक्वेशन ऊपर रखो। देखो इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा सीगा किहदा कोफिशिएंट बड़ा छोटा है, आपां सॉल्व कर देंदे सी। बस ये विच तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना। सैकेंड इक्वेशन दे विच जिहड़ा हैगा एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन नालों बड़ा है ना, एक्स ते वाई दोनों दे, तो आपां सैकेंड इक्वेशन ऊपर करके लिख लिया तो फर्स्ट इक्वेशन नीचे करके लिख लिया। बाकी प्रोसैस सेम है क्योंकि दो ही इक्वेशनस हैं, तो जस्ट तुसी की है सैकेंड इक्वेशन चो एक्स खत्म कर दो तो वाई की वैल्यू निकली आएगी, उस वैल्यू में तुसी इस पुट करके एक्स की वैल्यू कट सकते हो। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में तुसी मल्टीप्लाई करके ये सैकेंड इक्वेशन सबट्रैक्ट करता तुहाडे कोल बन गया, उस बैक सबस्टिट्यूशन कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू ये पुट करके अपने एक्स की वैल्यू जी है वो सॉल्व कर लेनी। ओके, एक्स की वैल्यू इस तरह 2.1 एक्सरसाइज बेटा तुसी सॉल्व करनी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो नैक्सट आप अगले लैक्चर अगला मैथड करांगे गॉस जॉर्डन मैथड। थैंक यू बेटा।